Hello students, in previous video we have revised the exercise of chapter 10 and now today we will revise the question answers of this chapter. So here the first question is name the main components of air. So air के main components कौन से हैं? We have discussed that nitrogen, oxygen and small amount of other gases, right? Nitrogen is present in 78%, oxygen is 21% and remaining 1% is your other gases. State the meaning of the term photosynthesis. So you know the process by which plants prepare their own food, right? The process, एक process का नाम है in which plants prepare their own food is called photosynthesis. Next is state two possible harmful effects of ultraviolet rays. So you know ultraviolet rays are very harmful. So you have to state two possible harmful effects. So the two possible harmful effects of ultraviolet rays are, first, it can cause skin and eye diseases in animals. जो animals हैं उनमें स्किन और आई डिजीजेस हो सकती है इससे. एंड सेकेंड, इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को भी ये अफेक्ट करता है. दैट मीन्स वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रावायलेट रेज. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म एयर पॉल्यूटेंट्स. सो यू नो व्हाट इज अ पॉल्यूटेड एयर, जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, राइट? ऐसी एयर जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर. नाउ व्हाट आर एयर पॉल्यूटेंट्स? सो जो इम्प्योरिटीज एयर को गंदा करती है, सो दोज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. सो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट. The impurities present in the air is called air pollutant. Next is name any two of the gaseous pollutants present in air. So you have to name any two gaseous pollutants. So many are given in your books. You have to write any two gaseous pollutants. So like carbon monoxide and sulfur, right? These are two gaseous pollutants. Next is list any four causes of air pollution. So you know many causes and many causes are given in your book also. You have to write any four causes of air pollution कि कैसे air pollute होती है. So first you can write most common smoke emitted by vehicles. So vehicle से जो smoke निकलता है it pollutes the air. Secondly smoke from forest fires. Forest में जब आग लगती है तो बहुत स्मोक प्रोड्यूस होता है क्योंकि फॉरेस्ट में कई दिनों तक आग लगी रहती है. जब एक बार लग जाती है तो बहुत मुश्किल से वो बुझती है, तो उससे बहुत स्मोक प्रोड्यूस होता है. सो स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड स्मोक रेज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस. सो यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय बर्निंग कोल्स इन पावर हाउसेस. तो उससे भी बहुत स्मोक रेज होता है. सो स्मोक रेज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस. And germs from coughing and sneezing. So जब हम कफ करते हैं या स्नीज करते हैं उससे भी जो germs हैं वो स्प्रेड होते हैं. So that's why you should cover your mouth while coughing or sneezing. So germs from coughing and sneezing also causes air pollution. Now these are short questions. Now E part. Why is air necessary for animals? So you know why air are necessary? Because without oxygen we can't survive and we get oxygen from the air. So all the animals need oxygen to live and they all need this oxygen every minute and second of their life. हर एक मिनट और सेकंड चाहिए, अदरवाइज अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको then we will die. So the oxygen present in the air is used to produce energy from the food that is eaten. और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में ये क्या काम करती है? It produce energy from the food that is
eaten. Right? फर्स्ट थिंग, जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट ऑक्सीजन. सेकेंडली, दिस ऑक्सीजन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटन. नेक्स्ट इज, हाउ इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है? सो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट वी हैव डिस्कस्ड. ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल. Secondly, it helps them to develop their fruits and seeds. जो इनके fruits and seeds है उनको भी develop करने में help करती है नाइट्रोजन. And it also it also increases the size and quality of their leaves. So वो उनके quality जो उनके leaves की होती है उसको भी अच्छा करती है, size increase करती है. So that is the importance of nitrogen for plants. Right? 3 importance. First, it is essential for their growth. सबसे पहले growth के लिए essential है. Secondly, वो उनके fruits and seeds को develop करने में help करती है. Right? And thirdly, it increases the size and quality of their leaves. जो उनके leaves है उनका size और quality को increase करती है. So इनको points में भी आप learn कर सकते हैं. And how is the balance of oxygen and carbon dioxide in air maintained in nature? So oxygen and carbon dioxide का कैसे balance होता है nature में? So we have discussed it many times that animals and human beings use oxygen present in the air and give out carbon dioxide gas. तो हम oxygen inhale करते हैं और exhale कौन सी गैस करते हैं? Carbon dioxide. And plants on the other hand consumes carbon dioxide. जो हम exhale करते हैं वो वही गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम. तो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो यूज करते हैं. एंड दे देन गिव आउट ऑक्सीजन. और जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन. एंड इन दिस वे द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड इन नेचर. हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा फूड बनाने के लिए. और जब वो फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, एट दैट टाइम ऑक्सीजन गेट रिलीज. और जब ऑक्सीजन रिलीज होगी फिर से ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स उसको इनहेल करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है एंड बैलेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहता है. नेक्स्ट इज, वाई इज एसिड रेन हार्मफुल. एसिड रेन हार्मफुल क्यों होती है? इसके 2 इफेक्ट्स हैं. फर्स्ट, इट डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इसको भी आप पॉइंट्स में लर्न कर सकते हैं. वाई इज एसिड रेन हार्मफुल? एसिड रेन इज हार्मफुल बिकॉज फर्स्ट इट डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्रॉप्स को खत्म कर देगी, डैमेज करेगी और जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको भी रिड्यूस कर देती है. सेकेंड, इट ऑल्सो डैमेज्ड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल. जो मार्बल से बने होते हैं मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, उनको ये डैमेज कर सकती है. सो आप इनको पॉइंट्स में लर्न करें, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. वाई शुड वी फील वरिड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? सो यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. जो अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है due to the increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. That is global warming. So why should we feel worried about it? We should feel worried about global warming because it can result in an increase in the melting of polar ice caps. तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स, वो क्या होगी? मेल्ट होगी. और उसके मेल्ट होने से बहुत सारा डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो इट कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन. सो बहुत सारा डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन उससे हो सकता है. नाउ सजेस्ट सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. अब हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू? सो
there are many ways. You have to suggest some ways, at least 5, right? 5 or 6. So we should plant more trees. जितने ट्रीज प्लांट करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या हार्मफुल गैसेस वो एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, राइट? तो उससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होगा. उसके बाद सेकेंडली, लेसर यूज ऑफ व्हीकल्स. हम व्हीकल्स कम यूज करेंगे तो हार्मफुल गैसेस भी कम रिलीज होगी. रेगुलर चेक ऑफ व्हीकल्स. अगर व्हीकल्स यूज करने हैं तो उनको अच्छे यूज करने चाहिए. अगर वो खराब है तो उससे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा. तो रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स. नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीजल एंड पेट्रोल वी कैन यूज CNG, like, and at homes we can use LPG, biogas. So these are cleaner fuels. Next is dumping garbage in a pit. So instead of burning garbage, what we can do, we can dump the garbage in the pit. And constructing tall chimneys. So tall chimneys construct करने से जो smoke है वो ऊपर चले जाएगा और हम inhale उसको नहीं करेंगे. And last, how does planting of trees help in making air cleaner? So अगर हम plants trees लगाएंगे तो उससे air कैसे clean होगी? I have just discussed. And last question, that plants use up carbon dioxide gas present in the air for producing their food using photosynthesis. तो plants absorb कर लेंगे carbon dioxide gas अपना food prepare करने के लिए. And this help to reduce the greenhouse effect. Greenhouse effect अगर reduce होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है हमको खतरा है वो भी कम हो जाएगा. एंड दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर. और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यू नो, एंड जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही हमारी एयर क्लीन होगी. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस chapter. So learn it, and in next video we will start the revision of chapter 11. Thank you.